Good morning, students. How are you? Hope you all are good. So, today I am here to teach you a lesson, Unit 4, Section C, the bell. This is part C. In part A and B, I have already told you about this story. That this story, The Bell, is written by Geeta Krishnakati. In this story is about a rebellious young girl. Look at the picture. uh, According to this girl, uh, we all are equal in the eyes of God. So why society discriminate between Brahmins and other caste? Okay, so she raised the question that why Thangam, who is Thangam is the daughter of the priest, temple priest. Okay, so she said ki why only Thangam permitted to touch the bell. थंगम को ही परमिशन क्यों है मंदिर का बेल टच करने की. She said that Thangam came over to play hide and seek every afternoon and behaved no differently from any of them. She said कि hide and seek खेलने के लिए Thangam हमारे साथ आती तब तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. देन टेम्पल के अंदर आते ही ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों क्रिएट हो जाता है. एंड शी मे अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड. हम सब भगवान की नज़रों में सेम है. सो ये जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, दिस इज़ रॉन्ग. वो ट्राई करती है अपने ग्रोन अप्स को, अपने एडल्ट्स को समझाने के लिए, बट कोई समझता नहीं हुआ. बिकॉज सब समझते हैं कि अभी बच्ची है, ये ट्रेडिशंस को नहीं मान रही है. जब ये बड़ी होगी तो ये अपने आप ये इस रूल को, इस ट्रेडिशन को फॉलो करने लगेगी. बट इन स्कूल इसकी टीचर ने इसको समझाया होता है दैट वी ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड. सो now today we will read with this paragraph, page number 99. From this, the usual knot of women was gathered around the three tied stone lamp at the outer door, talking earnestly in hushed voices. Their face grave and sad. Keluner edged as close as them as he dared. Who is Keluner? Who is Keluner? Keluner is a servant. Look at the picture. He is servant and she is गर्ल, रिबेलियस गर्ल. ओके, सो फैमिली वालों ने केलू नेर को स्कॉट किया होता है इस गर्ल के पीछे, इसको कंपनी देने के लिए. वाई? बिकॉज कि ये कुछ हर बार की तरह कुछ रिबेलियस वर्क ना कर दे, कुछ गड़बड़ ना कर दे टेम्पल में. इस गर्ल के माइंड में सीक्रेट मिशन है जो ये आज उस चीज़ को पूरा करेगी. नाउ she knew he drank in every whisper that he could distinguish, and that he was impart it all to her mother and great grandmother over dinner tonight. ग्रेट ग्रैंड मदर ने और मदर ने डिनर में ये डिस्कशन किया था कि लाइक केलुनेर को हमेशा इसके पीछे रहना है जब भी ये गर्ल टेम्पल में जाएगी. As they started their ritual circling on the outer walls of the temple, she noticed that the football game had already begun in the courtyard beside the sanctuary of Krishna. Who is Krishna? Krishna उसका गर्ल का स्कूल मेट है. एंड ये जो गर्ल है इसको फुटबॉल का मैच देखना बहुत पसंद है. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस गर्ल ये मैच, ये जो फुटबॉल का गेम होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. इसमें इतने एफर्ट्स लगते हैं, इतनी ताकत लगती है, तो इसको बहुत मज़ा आता है ये गेम देखने में. She enjoyed watching the players more so because of obvious delights in the vigor of the game. Vigor of the game means जितना efforts लगते हैं गेम में. फुटबॉल का मैच आप लोग ने देखा होगा कितना एफर्ट्स लगते हैं, बॉल के पीछे भागना, प्लेयर्स इतनी रनिंग करते हैं. तो सेम इस छोटी सी गर्ल को ये देखना बहुत पसंद था. Arriving at the sanctuary of Krishna, she saw the small door obstinately closed. Kelu Nair has told her time and time again that the image inside was unimaginably beautiful. जो केरू नेर था वो उसको बार बार पिंच कर रहा था कि लाइक टेम्पल के अंदर चलो, बिकॉज लैम्प लाइटिंग का टाइम हो गया है, मंदिर में जो दिया जलता है उसका टाइम हो गया, सारे रिचुअल्स का टाइम हो गया है. Today she circled it hurriedly, her mind full of her secret mission. वो बहुत इग्नोर कर रही थी केलूनेर को. Why? Because उसके माइंड में जो सीक्रेट मिशन था उसको वो फॉलो करना था. And almost rang along, provoking an incomprehensible torrent of protest from Keluner, who could not keep her with her.
वो फटाफट खड़े होती है और अंदर रन करते हुए चली जाती है ताकि केलूनेर उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करे, थोड़ा सा दूर रहे. द स्टन cat ऑफ द टेम्पल ऑलवेज एन्चेंटेड हर. जो मेन एंट्रेंस है टेम्पल का, वो बहुत ही ज़्यादा वी कैन से मिसमराइजिंग है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है टेम्पल का. वो इस पूरे पैराग्राफ में टेम्पल का एनवायरनमेंट सराउंडिंग उस चीज़ को बताया गया है. ओके. When she recalled it afterwards, as she often did, her memories were full of sounds and colors. The river ran through her, the jade green of its river water melting first into the rice fields beyond it and then onto the luminous evening sky. In the enclosed area where the women bathed, shrill voices rose above the wet slapping of cloth against stone. ये सब डिस्क्राइब किया हुआ है जो टेम्पल का सराउंडिंग है, कैसे भजनों की आवाज़ आती है, मंत्रों का उच्चारण की आवाज़ आया करती है, और बगल में जो रिवर है वहाँ पे जो लेडीज़ बात करती है और वो जो कपड़े धुलती है उनकी आवाज़, वो जो स्टोन पे मार मार के, पत्थर पे मार के से कपड़े धुलती है, लगड़ती है, उन सब की आवाज़, वो कितना ब्यूटीफुल सराउंडिंग है, कितना अच्छा दृश्य है वहाँ का, इमेज कितनी सुंदर है, वो सब टेम्पल का सराउंडिंग को एक्सप्लेन किया गया है. द रॉक बीनीथ हर फीट वॉज टर्निंग कूल. जो नीचे मार्बल था, जो पत्थर था उसके पैर के नीचे, वो ठंडा होता जाता है. वाई? बिकॉज उसके माइंड में जो सीक्रेट मिशन था वो उसके बारे में बहुत सोच रही थी, बहुत प्लानिंग कर रही थी. She remembered that the hour of lamp lighting was near. उसको पता था कि अब जो रिचुअल है उसका टाइम बहुत ही क्लोज हो गया है. And hurried back through the shadow-filled hall. Beyond the tall golden flagpole, tiny pinballs of the light pierced the warm darkness of the inner sanctuary. Kelunair, muttering angrily, was close upon the heels surrounding the wall. She acknowledged with an involuntary intake of breath the sparkling of rectangle of a frame that outlined in the door of the corner sanctuary of Ayappa. केलूनेर है जो बहुत ही एंग्री हो गया है, बिकॉज जो गर्ल है उसकी बात नहीं सुन रही है, वो बार बार उसको पिंच कर रहा है लेकिन वो बिल्कुल अवॉइड कर रही है. वो उसके माइंड में फुल ऑफ सीक्रेट मिशन है कि लाइक कैसे क्या करना है, एवरीथिंग इज मतलब सब प्लान है. ओके. नाउ इनसाइड द टेम्पल हर फीट लविंगली केयरलेसली द कूल स्टोन ऑफ द इनर कोर्टयार्ड. वो भाग के जाती है बिना किसी की परवाह किए, reveling in its smooth worn feel. Okay. She bowed confidently, greeting the little doll like Parvati, crossed her arms and touched her feet before the dark, almost invisible Ganesha, and came hurriedly upon the crowded main sanctuary. A familiar scent of hot oil and flowers of vibhuti and wet clothes welcomed her. अब वो उसके टेम्पल के अंदर एंट्री करती है, वो बता रही है अंदर का एनवायरनमेंट, वो कैसे टच करती है मूर्ति को, कैसे एंट्री करती है, वो जो प्रिपरेशन चल रही है लैम्प लाइटिंग की, उसकी जो सेंट है हॉट ऑयल की, फ्लावर्स की, वो सब उसका वेलकम कर रही है. इट मीन्स कि वो समझती है कि जो मैं करने जा रही हूँ, गॉड जो है वो उनकी आइज़ में मेरा काम जो है वो सही है, मैं जो कर रही हूँ वो सही. सोसाइटी इस चीज़ को गलत मानती है लेकिन जो मैं करने जा रही हूँ वो एकदम राइट है. The women of the Nambudri household stood in front of a tight, invisible circle that no one else must touch. Their eyes closed, clutching the thread umbrellas at the upskirt. Everyone's vision, their lips moving in prayers. Okay. सो नंबूदरी वुमेन्स कौन है? वो ब्राह्मण, केरला के ब्राह्मण वुमेन्स है जो टेम्पल में फ्रंट पे खड़ी होती है एक सर्कल बना के. वाई? बिकॉज कोई और टच ना करे उस टेम्पल को या एंट्री ना करे. ओके. बाकी जो विलेजेस हैं उनको अपनी आइज़ क्लोज करनी होती है और अपने एक अम्ब्रेला से अपने आइज़ को, विजन को ब्लॉक करना होता है, और उनके जो लिप्स है वो प्रेयर्स करेंगे बस. ओके. किसी को इवन देखना भी अलाउ नहीं है प्रेयर गॉड को उस टाइम पे. She edged her way towards them, ignoring Kelunair's shocked whisper of the protest, almost bumping into one of the ridiculous umbrella. वो अंदर गर्ल जो है सीधा एंट्री कर जाती है. केलूनेर जो है उसको बहुत रोकता है, बहुत ट्राई करता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देता है, बट वो सबको इग्नोर करके अम्ब्रेला को बम्प करके वो मूव कर जाती है प्रॉपर इनसाइड द टेम्पल.
She saw Thangam standing near the steps looking remote and wrapped with the devotion. उसकी नज़र किस पे पड़ती है? थंगम पे पड़ती है. द रिदम ऑफ द इकद्दा वॉज माउंटिंग क्रेजीली. मतलब सब लोग बहुत ही रिदम में प्रेयर कर रहे हैं. एज द डोर वर फ्लंग ओपन शी ब्लिंक्ड एट द सडन विजन ऑफ अ गॉड. Before she could regret her decision to go back upon it. वो जैसे देखती कि टेम्पल का दरवाजा खुला, वो बिना रिग्रेट किए, वाई बिकॉज वो बैठ के एक बार सोचेगी तो उसको सही गलत में के बीच में फ़र्क सोचना पड़ेगा. वो कुछ भी बिना सोचे समझे वो अपने डिसीजन को कंप्लीट करने के लिए, अपने सीक्रेट मिशन को कंप्लीट करने के लिए सीधा अंदर टेम्पल के अंदर रन कर जाती है. She elbowed herself quickly through the untouchable circle of नंबूदरी वुमेन. वो जो नंबूदरी वुमेन्स जो आगे सिक्योरिटी के लिए खड़ी रहती हैं, वो उनको बिना टच किए अंदर ट्राई करती है और अंदर घुस जाती है. नियरली फॉलिंग ऑन द स्लिपरी स्टेप्स. और जो टेम्पल के अंदर जो स्लिपरी टाइल्स है उस पर घुस के बिना नंबूदरी वुमेन्स को टच किए सब अंदर चुपचाप चली जाती है. The sight of the big bell above her touched her with a hardly excitement. और वो देखती कि बड़ा सा अंदर बेल लगा है मंदिर के ऊपर जो घंटी होती है, और वो उसको बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ टच करती है. She could distinguish केलू नेर्स frankly whispered threats. वो जो दूर खड़ा था केलू नेर, वो उसको धमकियां दे रहा था दूर से, चली आओ, मतलब डोंट टच. वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा था, बहुत ही इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, डोंट टच, डोंट डू. बट वो सारे थ्रेट्स को इग्नोर करते हुए अंदर चली जाती है, और वो करती है. बट शी रीच्ड अप. बट वो इन सब के बावजूद भी वहाँ तक पहुँच जाती है. रैंग द बेल विथ वन resounding clang and was down the step before he realized what was happening. वो फटाफट अंदर जाती है, ऐसे एक्साइटमेंट के साथ जंप करती है, वो बैल को रैंक कर देती है और वो वापस आ जाती है. बिफोर रियलाइज्ड व्हाट वाज हैपनिंग. किसी को भी रियलाइज हो कि क्या हुआ है, केलू नेर को भी भरोसा नहीं था कि मतलब इतनी बड़ी सी चीज़ हो जाएगी, और वो करके फटाफट चली आती है. Dimly she was aware of the dark looks of the stunned mummers pushing as her. She permitted Kelu Nair to drag her away. अब वहाँ का जो सिचुएशन है वो कैसा हो गया? मातम जैसा हो गया. वाई? बिकॉज इतना बड़ा ट्रेडिशन, रूल जो है, रेगुलेशन जो है, कस्टम जो है, वो ब्रेक कर दिया गया इस गर्ल के द्वारा. इस गर्ल ने जो सोसाइटी का जो कस्टम है उसको ब्रेक कर दिया, और उस बेल को किसी को परमिशन नहीं है टच करने की, उसने टच कर दिया. केलू ने को परमिशन दी जाती कि उसको ड्रैग कर घसीट के घर ले जाया जाए. रिटर्निंग होम इन द गैदरिंग शैडो. वो सबके बीच में घर बुलाया, घसीट के ले आई जाती है. हिज थ्रेट्स ग्रू लाउडर एंड मोर विलेबेंस. अब जो उसको डांट पड़ने वाली थी, जो उसको धमकियाँ मिलने वाली थी, अब वो बहुत ही लाउड हो गई है, बहुत ही भयानक हो गई है. वार्निंग ऑफ द ग्रेट ग्रैंड मदर्स टेरिबल wrath was becoming real. अब जो उसकी दादी माँ के वार्निंग थी वो भी अब सच हो जाएगी. मतलब उन्होंने जो धमकियाँ दी थी, उसको जो समझाया था, अब तो उसके इसके मतलब बहुत डांट पड़ने वाली है. शी पेड नो हीड एट ऑल. इट मीन्स कि सोसाइटी, विलेजर्स, फैमिली मेम्बर्स, केलू नेर जो भी कुछ बोल रहा है, बट शी पेड नो हीड एट ऑल. मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसको? उस यंग गर्ल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. एज शी फेल्ट वंडरफुली लाइट हार्टेड, एक्साइटिंगली हैप्पी. वो बहुत ही लाइट हार्टेड, अपने दिल से एकदम हल्का फील कर रही है और बहुत ही ज़्यादा खुश है. As she climbed over the stone tiles to enter the house. और वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपने घर के अंदर एंट्री करती है. She turned at for a last look at the temple. वो एकदम लास्ट बार पीछे टर्न करके टेम्पल की तरफ देखती है. She grinned back at the corresponding blessings for happiness. वो बहुत ही ज़्यादा खुश है. ये जो भी षड्यंत्र रचा गया था सोसाइटी के द्वारा, षड्यंत्र मीन्स जो भी ऐसे रूल्स थे जो लोगों को बांध के रख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये रूल कि एक कास्ट इस चीज़ को, इस बेल को टच नहीं करेगा. वाई? बिकॉज वो लो कास्ट है. बट दिस इज़ रॉन्ग ना. सारे लोग एक समान होते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल होते हैं इन आइज ऑफ गॉड. भगवान की नज़रों में सब सेम है. सबका ब्लड रेड कलर का होता है, सब खाना खाते हैं, सब काम करते हैं. तो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट में कैसा हुआ? सो ये एक षड्यंत्र है जो हमें ह्यूमंस ने, हमें रूल्स रेगुलेशन गलत करके ट्रेडिशन का नाम दे दिया गया है, कस्टम का नाम दे दिया गया है. दिस इज़ रॉन्ग. बट वो बहुत हैप्पी है. वाई? बिकॉज उसके स्कूल में बताया गया है कि दिस इज़ रॉन्ग. शी वॉज इन डायर डिज़ायर. ओके.
अब उसको बहुत ही ज़्यादा घर में बहुत ही ज़्यादा अपमान सहना पड़ेगा. शी टाइट लिप्ड, साइलेंस वॉज लाउडर देन द स्पीच. वो घर आती है, वो देखती सब मतलब बहुत सन्नाटा है, मतलब सब एकदम साइलेंट है. ओके अगर आप लोग कुछ कभी गलत कर देते हो तो आपने देखा होगा कि लोग आपको डांटते हैं, मारते, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा बड़ी गलती कर दी तो बहुत साइलेंट एटमॉस्फेयर हो जाता है, सब लोग साइलेंट हो जाते हैं. सो इस गर्ल के साथ भी ऐसा हुआ. इसने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी कि अब इसको कोई स्कोल्ड भी नहीं कर रहा है, डांट भी नहीं रहा है, सब साइलेंट है. तो वो कहती है साइलेंस वॉज लाउडर देन स्पीच. जो इन घर वालों की चुप्पी है वो भी बहुत मुझे ज़्यादा चुभ रही है. As was the conspicuous absence of favorite tiny padappams at dinner. और इसको कैसे पता चलता है सब लोग गुस्सा है. इसका जो फेवरेट डिश थी पदप्पम्स, वो इसके डिनर में आज मिसिंग है. जो इसका फेवरेट था और हमेशा इसके डिनर में, लंच में बनता था, लेकिन आज वो नहीं है. तो इसको पता चल गया कि सब लोग बहुत मुझसे नाराज़ हैं. शी डिड नॉट रियली केयर, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. फॉर द साइलेंस सीम टू बी फिल्ड विद 1,000 वॉइसेस सिंगिंग विद इन हर. इसके जो माइंड में, इसके जो हार्ट में बहुत सारे बातें चल रही हैं, अच्छी अच्छी, बहुत सारे गाने चल रहे हैं, बहुत सारे एक्साइटमेंट चल रही है. वो इस साइलेंस के आगे कुछ भी नहीं है. शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है. And she was quite sure that the golden god within the temple, in whose eyes all are equal, had accepted her gesture with love. और वो बहुत ही ज़्यादा 110% श्योर है दैट जो मंदिर के अंदर गॉड है, उन्होंने ये इसका जेस्चर, जो इसका जो सीक्रेट मिशन इसने कंप्लीट किया है, उसको बहुत ही सराहा होगा, बहुत ही दिल से वेलकम किया होगा. वाई? बिकॉज शी नो दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड. और ये जो रिचुअल्स हैं, ये जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस है, ये हम ह्यूमंस ने बनाए हैं. कास्ट सिस्टम जो है वो हम ह्यूमंस ने बनाया है. हमको कोई राइट नहीं है डिस्क्रिमिनेशन करने का एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस में. हम लोग ये रूल्स नहीं बना सकते कि मंदिर के अंदर एक कास्ट का इंसान जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा, बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग. और ये जो हमारे ट्रेडिशन है वो बहुत पुराने हैं, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हुए हैं. उस समय इतने लोग एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते हैं, इन रूल्स में, इन ट्रेडिशंस में चेंजेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और वो चेंजेस आप या हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग अपने ग्रोन अप्स एडल्ट्स को समझा सकते हैं कि ये रूल्स जो था वो पुराना है और वो गलत है, अब उसमें चेंजेस ज़रूरी है, जो इस गर्ल ने किया. विलेजर्स समझे ना समझे, फैमिली मेम्बर्स समझे ना समझे, शी नो दैट गॉड ने जो है इसका जेस्चर बहुत ही अच्छे से वेलकम किया है. ओके, होप यू फाइंड द लेसन यूजफुल गाइज. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.